نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس کا کہ جنہوں نے انتہائی اہم موضوع عقیدہ ختم نبوت جو ہمارے ضروریات دین میں سے ہے اس کے لیے لب کشائی کا موقع دیا۔ میں شکر گزار ہوں سٹی کالج فاطمہ کیمپس کے پرنسپل صاحبہ، دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طالبات۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے اور عقائد اسلام میں سے ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ عقائد اسلام 5 ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر یقین رکھنا۔ تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ختم نبوت تو نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ختم نبوت رسالت کے اندر موجود ہے۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا، اور جب ہم تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائیں گے تو اس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، اور ان کو ذاتی اور صفاتی تمام اوصاف کمالات کے ساتھ مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا عقیدہ رسالت ناقص ہو جائے گا۔ یہ 7 ستمبر 1974 اس اعتبار سے 7 ستمبر یہ اہمیت کا دن ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام شہید ہونے والے 259 صحابہ کرام ہیں، اور کفار کی تعداد 759 ہے، 759۔ تو ان دونوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو 1000+ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جنگیں ہوئی تھی، غزوات ہوئے تھے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں چند لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس میں اسود عنسی، مسیلمہ کذاب اور ایک مشہور عورت ہے جس کا نام ہے سجا بنت حارث، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر جرار جب بھیجا گیا تو اس جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کم از کم 1200 ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ختم نبوت کی خاطر جان دینے والے صحابہ کرام 1200 لوگ ہیں تقریباً، اور پورے غزوات جو 29 یا 27 کی تعداد آتی ہے اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کس قدر صحابہ کرام کے اندر ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ تحریک مختلف زمانے میں لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وقت چلتا رہا، اس کے خلاف ہر زمانے میں لوگوں نے اجماع کے طور پر اکٹھے ہو کر ہر وقت ان کے خلاف لڑتے رہے اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ پھر وقت آیا کہ 1835 یا 39 1835 یا 39 میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بندہ بہت اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا انداز تقریر، انداز خطابت اس طرح لوگوں کے اندر سرایت کر گیا کہ لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اس نے بالآخر 1889 میں جماعت احمدیہ کی ایجاد رکھی۔ تو اس نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ میں صرف مصلح ہوں، اصلاح کرنے والا ہوں۔ وقت چلتا رہا، پھر اس نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے مسلمانوں کا جو ایک عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے زندہ اٹھا لیا ہے،
आसमान पर वो मौजूद है। कुर्बे क़ियामत में दोबारा वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक तशरीफ लाएंगे। उसने मुसलमानों के इस नजरिए को ठेस पहुंचाई और कहा जिस ईसा के बारे में कहा गया है कि उसने क़ियामत के करीब आना है वो मैं हूं। तो उसने ये दावा कर दिया कि मैं मसीह मऊद हूं। और आज भी जब उनकी तकरीर शुरू होती है तो वो मसीह मऊद का लफ्ज बोलते हैं। तो फिर उसने इससे आगे फिर अगला दावा किया। उसने कहा मैं मसीह मऊद से आगे इमाम महदी हूं, जिसकी तवातुर के साथ हदीस मौजूद है, जिसने इमाम महदी ने आना है। फिर उसने इससे आगे कदम उठाया। उसने कहा मैं इमाम महदी से भी अगला, मैं जिल्ले नबी हूं, नबी तो नहीं हूं लेकिन नबी का साया हूं। फिर आखिर में उसने आकर एक दावा किया। उसने कहा मैं बाकायदा शरई तशरीई नबी हूं। ये उसने दावा किया। और ये बंदा 1900 पूरा 25 अगस्त 1900 में बादशाही मस्जिद में मुनाजरे से भाग गया था, जिसके मुकाबले में मुनाजरा करने के लिए, मुबाहला करने के लिए हजरत सैयदना पीर मेहरे अली गोड़ा शरीफ वाले तशरीफ लाए थे। ये मुनाजरा करने से भाग गया था 25 अगस्त 1900 में। फिर आखिर ये बंदा वासिल जहन्नम हुआ लाहौर के अंदर 1908 में। इसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इसने मुख्तलिफ शक्लों में मुसलमानों के अकायद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ मुख्तलिफ शक्लों में मुसलमानों ने भी, मुख्तलिफ मसाले के उलमा ने भी भरपूर हिस्सा लिया। ये वक्त चलता रहा। एक बड़े सगीर के अंदर पहला मुकदमा रियासत बहावलपुर में दर्ज होता है। गुलाम आयशा नामी एक औरत अपने खामद अब्दुल रज़ाक के खिलाफ दावा दायर करती है रियासत बहावलपुर की अदालत में कि ये मेरा खामद मुर्तद है, ये मेरा खामद जो है गैर मुस्लिम है, क्योंकि ये कादियानी को नबी मानता है, मिर्जा गुलाम अहमद को। 1926 में यह मुकदमा दर्ज होता है। अंग्रेज की हुकूमत होती है। वक्त चलता रहा, मुसलमान दलाइल देते रहे। देवबंद से मौलाना अनवर शाह कश्मीरी तशरीफ लाते रहे। बहावलपुर के शेखुल जामिया जो यूनिवर्सिटी इस वक्त है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उस वक्त मदरसा होता था, जामिया अब्बासिया उसके शेखुल जामिया होते थे। मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी, ये सूरज मियानी के करीब एक घोटा जगह है, वहां के वो रहने वाले थे। तो उन्होंने भरपूर अंदाज में दलाइल दिए। और आखिरी जो मिर्जे की तरफ से एक सवाल हुआ था, जो उसके चाहने वाले थे, उन्होंने कहा ये सवाल है हमारा कि ये अगर अदालत के सामने मुसलमान ये साबित कर दें कुरान आखिरी किताब है, कुरान में से साबित कर दें, तो मैं अपना दावा वापस ले लूंगा। तो गुलाम मोहम्मद घोटवी की तरफ सबकी नजरें उठी कि अब मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी क्या जवाब देते कि कुरान की किस आयत से साबित करते हैं कि कुरान आखिरी किताब है। तो उन्होंने खूबसूरत आयत पढ़ी, सूरत अल बकरा की। उन्होंने पढ़ा वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अल्लाह फरमा रहा है वो लोग मोमिन हैं जो कुछ आपसे पहले अंबिया पर नाजिल किया गया, और वो लोग भी मोमिन हैं जो आप पर नाजिल किया गया उसको मानते हैं। और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आपके बाद जो कुछ नाजिल किया जाएगा उसको भी माने तब मोमिन होंगे। अल्लाह का ये ना फरमाना ये दलील है कि कुरान आखिरी किताब है। तो उस वक्त के जज गुलाम अकबर ने यह फैसला सुनाया 7 फरवरी 1935 को, ये औरत इसका निकाह खत्म, क्योंकि ये गैर मुस्लिम आदमी है, मुसलमान का गैर मुस्लिम के साथ निकाह नहीं हो सकता, तो ये जहां भी चाहे ये अपनी शादी दूसरी कर सकती है। तो पहला ये फैसला हुआ। फिर 1953 में तहरीकें चली कि ये कादियानी काफिर है। पाकिस्तान 1947 में बना, आप सब जानते हैं। 1953 में मुख्तलिफ उलमा को जेलें हुई। मौलाना अबुल आला मौदूदवी साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी साहब, इनको तो फांसी के आर्डर हो गए थे 1953 में। फिर मार्शल लगा, मार्शल लगने के बाद इनकी वो जो सजाएं थी कल अदम करार पड़ी थी। वक्त चलता रहा। जून 1974 में एक कौमी असेंबली में करारदाद पेश होती है जिस पर 22 MNAs के दस्तखत होते हैं। 22 MNAs, जिनमें पहले नंबर पर मौलाना शाह अहमद नूरानी,
दूसरे नंबर पर मौलाना मुफ्ती महमूद साहिब और दीगर 20 MNAs के दस्तखत होती है करारदाद के अंदर कि ये जो कादियानी है ये काफिर हैं। जब करारदाद के ऊपर काफी दिन बहस होती है, 7 या 8 दिन बहस होती है, 7वें या 8वें दिन 7 सितंबर 1974 को करारदाद बहस मुबासा के बाद मंजूर हो जाती है कि ये वाकई काफिर हैं। एक वक्त आया उसी असेंबली के अंदर कुछ MNAs कह रहे थे अगर वो मुस्लिम होने का दावा करता था कादियानी तो कोई बात नहीं है, मुजतहिद होने का दावा करता था तो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े मुजतहिद गुजरे हैं, अगर वो लोगों की इस्लाह करता था तो कोई बात नहीं है। तो वहीं पर एक कादियानी की किताब दिखाई गई कि देखें वो कहता है कि जो मुझे नहीं मानते वो हरामजादे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप MNAs होकर हरामजादे हो? तो उन्होंने कहा ये कैसी बात उसने लिखी? उसने कहा मेरी बीवियां अज़वाज मुतहरात हैं, ये लिखा हुआ है उस किताब में। ये जो मेरे मानने वाले हैं ये सहाबा हैं, ये जो मेरे मानने वाले 313 खलीफे हैं। तो इस तरह जब बात दिखाई गई तो MNAs सब के सब मुत्तफिक हो गए। इस इत्तेफाक का फायदा ये हुआ कि मुत्तफिका तौर पर कादियानी काफिर करार पा गए आईने पाकिस्तान के मुताबिक। 7 सितंबर 1974 ये जब कादियानी काफिर पर करार पा गए, उसमें चंद चीजें थी। नंबर 1, ये अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं बनाएंगे, मस्जिद जैसा डिजाइन मीनार नहीं बनाएंगे, अपनी इबादतगाह में मुसलमानों वाली अजान नहीं देंगे, मुसलमानों वाला हुलिया नहीं बनाएंगे। ये करारदाद में ये बातें लिखी हुई थी, लेकिन आज अलमिया ये है प्यारे बच्चों के हमें पता भी नहीं है। वो हमारे अंदर रहकर हमें तबलीग करते हैं, हमारे अंदर रहकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल ये है कि जब आप हिंदू को बर्दाश्त कर रहे हो, आप यहूदी को बर्दाश्त कर रहे हो, अरे मुसलमानों आप ईसाई को अपने मुल्क में बर्दाश्त कर रहे हो, तो एक कादियानी को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? तो उसके लिए आसान जवाब ये है प्यारे बच्चों कि जो हिंदू है वो हिंदू बनकर रहता है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। जो यहूदी है वो यहूदी बनकर रहता है, उससे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो ईसाई है वो ईसाई बनकर रहता है, उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। इस तकलीफ हमें उस वक्त होती है कि जब कादियानी मुसलमान के रूप में रहता है। जरूरी है कि वो कादियानी बनकर रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कादियानी मुसलमान के रूप में रहता है, उससे हमारे बच्चे अटैच हो जाते हैं, हमारे बच्चों को फिर खराब, हमारे मुसलमानों के अकायद को खराब किया जाता है, जिसकी वजह से मुसलमान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। तो याद रखें कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मैं इसके ऊपर 3 अकली दलाइल देता हूं ताकि बात आपके ज़हन में हमेशा के लिए रहे। नंबर 1 कि हमारे नबी के बाद नबी उस वक्त आता है जब हमारे नबी की नबूवत चंद इलाकों पर मुश्तमिल हो, हमारे नबी की नबूवत चंद लोगों के लिए हो, हमारे नबी की नबूवत चंद कौमों के लिए हो, तो उसके बाद नबी आने का चांस बनता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कि अल्लाह ने फरमाया कुल ऐ महबूब कह दीजिए या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। तो लिहाजा आपके बाद नबी आने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि आप हर नबी हर इलाके के लिए नबी हैं, हर कौम के लिए नबी हैं, हर मुल्क के लिए नबी हैं और हर आलम के लिए नबी हैं। जितने अल्लाह ने आलम बनाए, जिसकी दलील अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान की 100 आयात है जिससे यह साबित होता है कि आप आखिरी नबी हैं, और हदीस मुबारक की 200 हदीसें हैं जिससे यह साबित होता है कि आप आखिरी नबी हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, उसने शाह अहमद नूरानी को यह जुमला कहा था। उसने कहा मिंबर की बातें थी, मस्जिदों की बातें थी, खत्म नबूवत आप असेंबली में ले आए, इसका कोई बेनिफिट मुझे बता, आप हमें खराब कर रहे हैं। तो शाह अहमद नूरानी ने कहा आप मुल्क के वजीर आजम हैं? जी मैं वजीर आजम हूं। आपके मुकाबले में कोई डी चौक पे कुर्सी रख कर ये कहे मैं वजीर आजम हूं, तब आप क्या करेंगे?
तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा वो बागी है, जो मुझे वजीर आजम, मैं वजीर आजम हूं और मुझे नहीं तस्लीम करता वो बागी है। तो शाह अहमद नूरानी ने ये जुमला कहा था, जो हमारा नबी मौजूद है, हमारे नबी की नबूवत मौजूद है, जो उसके मुकाबले में नबी होने का दावा करे वो आपको बागी नहीं लगता? तो प्यारे बच्चों बात को समझे। देखिए दूसरी दलील देता हूं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने किताब दी वो महफूज किताब है हमेशा के लिए। जब वो महफूज है तो उसके बाद नई किताब की जरूरत नहीं है। जब नई किताब नहीं आ सकती तो नया नबी भी नहीं आ सकता। तीसरी दलील देता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया वो दीन कामिल अता फरमाया। वो दीन नाकिस नहीं है, अधूरा दीन नहीं है। जब दीन कामिल है हमेशा के लिए, वो नाकिस नहीं है, तो नया दीन नहीं आ सकता, नए दीन के साथ नया नबी भी नहीं आ सकता। एक फार्मूला याद रखें, हर चीज की तीन चीजें, तीन हालतें होती हैं, इब्तिदा, इर्तिका और इंतहा। आप अपने आप को देख ले, इब्तिदा हुई है, आप इर्तिकाई मराहिल से आप गुजर रहे हैं, उसके बाद आप इंतहा की तरफ, हम सब चले जाएंगे इंतहा की तरफ। इसी तरह नबूवत को भी समझें। नबूवत की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, फिर इर्तिकाई मराहिल से गुजरती गई, गुजरते गुजरते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आकर इंतहा हो गई, खत्म हो गई। तो कोई बंदा आज नबी होने का दावा करेगा, वो चाहे उसके मानने वाले हों, चाहे वो खुद हो, वो गैर मुस्लिम है, मुर्तद है। और यहां पर एक छोटी सी बात करता हूं, 1 मिनट की, तवज्जो करें बात पे। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह यस्तवी मिनल मलाइकते रुसुला व मिनन नास, लोगों में से और मलाइका में से अल्लाह रसूलों को चुनता रहेगा। आप किसी कादियानी से बात करें तो वो यही आयत फौरन पढ़ते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि लोगों में से अल्लाह रसूलों को चुनता रहेगा। जब आप कहते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो ये इस आयत का माना भी खत्म होता है। अल्लाह तो चुनता रहेगा, हर दौर में चुनता रहेगा। तो मुसलमानों ने खूबसूरत जवाब दिया कि कादियानियों ये बताओ कि मिर्जा गुलाम अहमद से पहले और हमारे नबी के बाद ये 1400 साल का अरसा है, आप कितने नबियों को नबूवत मानते हैं? कितने नबियों को मानते? वो कहते हैं हम किसी को भी नहीं मानते। और मिर्जा गुलाम अहमद मरा है 1908 में, उसके बाद भी तकरीबन 112-13 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद कितने नबियों की नबूवत को मानते हो? आप तो किसी को नबी नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हुआ, आयत का माना ये नहीं है। फिर आयत का माना ये है कि अल्लाह ने चुना उनको जो रसूल आते रहे रसूलों में से। यहां पर ये यस्तफी मुजारे का लफ्ज जरूर है, लेकिन ये माजी के माने में है। तो जब आप किसी को नबी तस्लीम नहीं करते मिर्जे के अलावा, तो इस आयत का माना खत्म हो जाता है। तो याद रखें प्यारे बच्चों कि 7 सितंबर 1974 को आईन में ये दर्ज कर दिया गया कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। पाकिस्तान में जो आदमी ये तस्लीम करेगा वो आदमी नान मुस्लिम है। तो लिहाजा अपने अकायद को महफूज रखें। क़यामत वाले दिन यही अकायद के बारे में पहला सवाल होगा। ये जो दो कौमी नजरिया आप पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान का मुस्लिम और नान मुस्लिम, दो अलग अलग कौमें हैं। इन यही दो कौमी नजरिया क़यामत के मैदान में, मैदान हाशर में होगा। मुस्लिम और नान मुस्लिम यानी सही अकीदे वाले और गलत अकीदे वाले अलग अलग हो जाए। जब सही अकीदे वाले अलग होंगे तो वही होगा जिसका खत्म नबूवत पर अकीदा है, वरना वो दूसरी कैटेगरी में होगा। तो अपने अकायद को महफूज रखें, हमेशा के लिए सच्चे मुसलमान बनकर रहें, हमेशा के लिए अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं आखिर में एक नारा लगवाता हूँ, आपने उस नारे का जवाब देना है। जो नारा तकबीर होता है उसके जवाब में अल्लाह अकबर कहते हैं, ताजदार खत्म नबूवत के जवाब में जिंदाबाद कहते हैं। आप सब जवाब देंगे, बात को खत्म करते हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत।
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।